There's a very beautiful Christian quote that I read, which I believe that you should hear this morning. बहुत ही सुंदर मसीह कहावत को मैंने पढ़ा और मैं समझता हूँ इस सवेरे के वक्त आप भी सुन लीजिएगा। It reads something like this: ऐसा है, talk with God, no breath is lost. परमेश्वर से बात कीजिएगा, सांस की कमी नहीं होगी। Walk with God, no strength is lost. परमेश्वर के साथ में चलिएगा, बल की कोई घटी नहीं होगी। Wait for God, no time is lost. परमेश्वर के लिए रुके रहिएगा, बने रहिएगा, समय नहीं गवाएंगे आप। Trust in God and you will never be lost. परमेश्वर पर भरोसा कीजिएगा, आप गुम नहीं होंगे। If you sit down and ponder on this saying, अगर आप बैठकर इन वाक्यों पर मनन करते हैं you will realize that every word that's mentioned there is very, very true. तो आप जान लोगे जो भी कहा गया है सत्य है। This morning the Lord Almighty want to speak to us prophetically. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर नबूवत करते हुए हमसे बात करना चाहते The हैं। way that the Lord is inspiring me is very different. जिस रीति से परमेश्वर मुझे प्रेरणा देते हैं आज बिल्कुल अलग है। At the end of this devotion, I'm going to even pray for that matter. इस डिवोशनल के अंत में मैं प्रार्थना भी करने वाला हूँ। The Lord want to challenge us. परमेश्वर हमको चुनौती देना The चाहते हैं। Lord want to provoke us. परमेश्वर हमको विवश करना The चाहते Lord want हैं। to push us to the edge. परमेश्वर हमको ढकेलना चाहते हैं। Just the way an eagle pushes its eaglets जिस रीति से उकाब अपने बच्चों को ढकेलता है out of that nest. उस घोंसले के बाहर, When it falls from top, और जब वो बच्चा जो है ऊंचाई से गिरने लग जाता है the eagle does not allow it to hit on the ground and die. तो वो उकाब जो है होने ही नहीं देता है कि वो बच्चा जो है जमीन को लगकर मर जाए। It will hover over that eaglet वो उकाब उस अपने बच्चे पर मंडराता रहता है and picks it up and takes it once again to the highest और place. उसको उठाता है और उसको ऊंची जगह में ले जाता है। Similarly, this morning, that's exactly what the Lord Almighty want to do it with each one of us. इसी प्रकार से सवेरे के वक्त समझ लीजिएगा परमेश्वर हमारे साथ में यही करना चाहते हैं। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, how was it in Eden Garden ईडन वाटिका में कैसे था when God formed man out of the dust? जब परमेश्वर ने मनुष्य को धूल से बनाया था। He had every physical faculty that you can name of. जब परमेश्वर ने बनाया था तो सारे अवयव जो है उसके बन चुके थे। He had his head, he had his ears, he had his eyes, and he had his nose. He had his mouth, he had his hands and legs. और सब कुछ बना हुआ था, उसका सर, आंखें, नाक, मुंह, हाथ, पांव, Every physical faculty that you can name. शरीर में उसके सारे अवयव जो है बने हुए थे। But was he alive? लेकिन क्या वो जिंदा था? No, until God breathed into him the breath of life. नहीं, जब तक कि परमेश्वर ने वो जीवन के श्वास को उसके अंदर फूका नहीं, तब तक वो जीवित प्राणी नहीं बना। He did not exist until the breath of God entered his nostrils. वो जीवित नहीं हुआ जब तक कि परमेश्वर ने अपने सांस को उसके नथनों में नहीं फूका। The moment God breathed the breath of life into और him, जिस पल परमेश्वर ने वो जीवन के श्वास को उसके अंदर फूक दिया, he got up and he walked, initiated and he began to move towards the greater purposes of God. फिर हम देखते हैं कि आदम जो है उठ खड़ा हुआ और वो चलने लगा और परमेश्वर का जो उद्देश्य, महान उद्देश्य उसके लिए था, वो उद्देश्य की ओर बढ़ने लगा। It's a different thing that he failed in the midway, ये अलग बात है कि बीच में ही वो हट गए, but he became a living being. लेकिन आदम हम जानते हैं कि वो जीवित प्राणी बने। Similarly, in Ezekiel chapter 37 verse 9 and 10, उसी प्रकार से हम देखते हैं एजेकियल की किताब 37 9 और 10। I want us to open to Ezekiel chapter 37 verse 9 and 10. I'm going to read for us from the NKJ version. It says, "Also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from four winds, O breath, and breathe on these slain that they may live." Verse 10, "So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood up upon their feet, an exceedingly great army." एजेकियल की किताब 37वां अध्याय 9वां और 10वां वाक्य। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक
बहुत बड़ी सेना हो गई। Think about Ezekiel's valley of dry bones. आप एजिकियल के सूखी हड्डी की तराई के बारे में सोचिएगा। There they were dead and they were in disarray. वहाँ पे ये मरे हुए लोगों की हड्डियां थी और तितर बितर हो गई थी। Does it kind of describes our life today? हम में से चंद लोगों का जीवन क्या उसका विवरण ऐसा है? The Lord Almighty is addressing us this morning. परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं इस सवेरे के वक्त। Many of our life kind of looks like this disarrayed dead bodies. हम में से बहुतों का जीवन जो है इस प्रकार दिखता है, बिखरा हुआ। When God breathed the breath of life, जब परमेश्वर ने वो जीवन के श्वास को फूंक दिया, something amazing happened. तो वहाँ पे कुछ अद्भुत होने लगा। Something great took place. वहाँ पे कुछ महान घटना घटी। The slain ones stood up and became a force to reckon. ये मरे हुए लोग जो है वो उठ खड़े हो गए, अपने पांवों के बल खड़े हो गए और वो एक सेना बन गए। Notice what it is said in this place. ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है It यहाँ talks about breath coming from four winds. पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि चारों दिशा से जो है ये हवा, ये श्वास आ रहे हैं, Four corners. चारों कोने उससे। You know, verse 7 says something. 7वें वाक्य में कुछ लिखा हुआ है। When we talks about shaking. वहाँ पे हिलने के बारे में उल्लेख My है। brothers and my sisters, that is the standard procedure for every action of और God. देखिए ये भुईडोल वहाँ पे हुआ ऐसा उल्लेख है। ये परमेश्वर जब कार्य करना चाहते हैं तो ऐसा होता है That He will kind of pull us out of every comfort zone. कि वो हमको जो है हमारे आरामदायक जगहों से हटाएंगे। He will kind of uproot us. कहीं ना कहीं जो है जहाँ पे हम हैं वहां से हमको निकालेंगे। Many of us, He cast us down. और हमें से कुछ लोगों को हम जो है गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। Many of us, He will pull us down and overthrow us. और हमें से कईयों को जो है वो गिरा देंगे। You don't have to worry. I don't have to worry. आपको और मुझको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Listen to this very carefully. बहुत ध्यान से सुन Before लीजिएगा। He even brings you to that particular place, और यहाँ पे उस जगह में लाने से पहले He mends every broken-hearted ones. वो हर एक खेदित मन वालों को उनके मनों को, हृदय को जोड़ते हैं। Just the way that He mended these bones. जिस रीति से उन्होंने इन हड्डियों को जोड़ा, Just the way that He gave a form and brought them और together. जिस रीति से उन्होंने उनको आकार दिया और इकट्ठा लाया, Similarly, He's going to mend us. उसी रीति से वो हमको बनाने वाले He's हैं। going to make us. वो हमको बनाने वाले हैं, He's going to shake us. हमको सही करने वाले, He's बनाने going to वाले pull हैं, us out of our the comfort zone. हिलाने वाले हैं। और हम जहाँ पे आरामदायक रूप में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, वहां से हमको हटाने वाले He's going हैं, to push us. वो हमको ढकेलने वाले हैं। Listen to this. ध्यान से सुनिएगा। In the midst of all this action, ये सारे एक्शन के बीचों बीच please know this: God does not have anything bad in mind against you. ये आप याद रखिएगा कि आपको लेकर परमेश्वर के मन में कोई बुरी बात नहीं है। You have present in mind, and God has your present at the same time your future in mind. आपके मन में आपका वर्तमान है, लेकिन देखिए परमेश्वर के मन में आपका वर्तमान भी है और आपका भविष्य भी है। When you go through much, that the Lord is with you, He will not allow you to fail or fall. और देखिए जब आप इन चीजों से गुजरते हैं तो परमेश्वर आपके साथ, आपके संग होंगे। वो होने नहीं देंगे कि आप गिरेंगे, असफल हो When you जाए। pass through the waters, जब आप पानी से गुजरते हो, when you pass through the जब fire, आप आग से गुजरते हो, He's going to be with वो you. आपके साथ, हमारे साथ रहेंगे। Because He's not going to be with you in the present, और because that He has future in mind. क्योंकि ना ही वर्तमान लेकिन भविष्य भी, आपका भविष्य भी Your उनके मन future में in है। mind. आपका भविष्य उनके मन में है। He will act on behalf of वो you. आपकी ओर से कार्यशील रहेंगे। He will not leave you. वो आपको छोड़ेंगे नहीं, He will not forsake वो you. आपको त्यागेंगे नहीं। Remember that He is the eagle and you're the eaglet. आप ये याद रखिएगा, वो उकाब है और आप उकाब का बच्चा है। Until that He sees you soar on the higher grounds, जब तक कि वो ये न देखे कि आप ऊंचाई में उड़ने वाले हैं that He will never leave you. या उड़ रहे हैं,
वो आपको नहीं छोड़ेंगे। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, this morning the Lord is inspiring me to pray for you. इस सवेरे के वक्त प्रभु परमेश्वर मुझे प्रेरणा देते हैं कि मैं आपके लिए In प्रार्थना the करूं। midst of this pandemic, ये पैंडेमिक, ये महामारी के बीचों when the बीच rest of the world is suffering, जब बाकी की दुनिया के लोग कष्टित है, the Lord is promising a great revival in our midst. परमेश्वर जो है वादा करते हैं कि हमारे मध्य में वो बेदारी को लाने That वाले He is going to shake everything within us. कि हमारे अंदर वो सब कुछ को हिलाने वाले हैं He is going to breathe into us the breath of life. और जीवन के श्वास को एक फूंकने वाले हैं। Every death in us will be gone. हर एक मृत्यु और मृत्यु की बातें निकल जाएगी। Everything that is disarrayed will be arrayed once again. जो भी ठीक ठीक जगह पर नहीं है वो ठीक ठीक जगह पर पड़ने लग जाएगा। Only when this revival hits us, जब ये बेदारी हमारे जीवन में आ जाती है, only when the Spirit of God moves in our life. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वो कार्यशील होते हैं। This morning I am inspired to pray for us. इस सवेरे के वक्त मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, मुझे प्रेरणा है कि मैं प्रार्थना करूं। Father, in the name of Jesus Christ, पिता यीशु मसीह के नाम I से bring everyone who's under the unction of my voice, Lord. परमेश्वर जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनको मैं आपके सामने लाता हूँ। Lord, I pray in the name of Jesus. मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु के नाम Lord, से। anything and everything that is dead in them be gone in the name of Jesus. परमेश्वर जो भी बातें उनमें मरी है वो निकल जाए पूरी रीति से मसीह यीशु के नाम से। Everything that is disarrayed, Lord, may it be once again reset, Lord, arrayed back in the name of Jesus Christ. परमेश्वर जो भी तितर बितर हुआ है परमेश्वर पुनः सही सही ठीक ठीक जगह में आ जाए यीशु के नाम से। Everything that is broken, Lord, may it be mended in the name of जो भी Jesus. टूटा पड़ा है परमेश्वर वो बन जाए यीशु के नाम से। Lord, in this period of shaking, और परमेश्वर ये हिलाने के समय में, in this period of discomfort, Lord, परमेश्वर ये अस्वस्थता के समय में you hold their hands, Lord, and comfort them, Jehovah. परमेश्वर आप इनके हाथ को पकड़ लीजिएगा और इनको सांत्वना Let your दीजिएगा। Spirit move and make them to realize that you're doing a great thing in them, Daddy. होने दे कि पवित्र आत्मा मंडराए और ये लोग ये इस बात को जान ले कि आप कुछ महान कर रहे हैं। Father, in the name of Jesus, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम let से your hand move, Lord, आपका हाथ परमेश्वर right now, अभी breaking every yoke of the enemy, शत्रु के हर एक जुए को तोड़ते हुए bringing them to the greater purposes of you in the name of Jesus परमेश्वर Christ. इनको आपके महान उद्देश्यों में लाते हुए यीशु We मसीह के thank नाम you, से। Lord. प्रभु जी हम आपको Even धन्यवाद in the देते हैं। midst of this pandemic, Lord, promotion may be the portion. परमेश्वर इस महामारी के बीचों बीच भी बढ़ोतरी इनका भाग हो। Lord, even in the midst of this confusion, Father, इन गड़बड़ियों के बीचों बीच भी Lord, by the power of your Spirit, clarity may be the portion, आपके Lord. आत्मा के सामर्थ्य के जरिए स्पष्टता इनका भाग हो। Lord, arise on behalf of these children. आप इन बच्चों की ओर से खड़े रहिएगा। Build them and make them to soar on the higher places in the name of आप इनको Jesus. बनाइएगा और होने दीजिएगा कि ये ऊंचाई में उड़ पाए यीशु के नाम से। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। Bless your holy हम name. आपके पवित्र नाम को धन्य In कहते हैं Jesus' matchless and यीशु के precious अतुल्य name. मूल्यवान नाम से। Amen. आमीन। My brothers and my मेरे भाई sisters, मेरी बहनों, if possible, pull along with you, rather take a piece of paper. अगर हो सके तो आप एक कागज कलम को लीजिएगा। Write down the state of you today. आज आपके हालत को लिख लीजिएगा। How you are, आप कैसे हैं? how you are spiritually, आत्मिक रूप में आप कैसे how you are emotionally, हैं? भावनात्मक रूप में how आप you are कैसे हैं? financially, आर्थिक रूप में आप कैसे you know, हैं? in every other aspects of your और life. बाकी के क्षेत्रों में भी आप कैसे हैं लिख लीजिएगा And give yourself 12 months. और अपने आप को 12 महीने दे दीजिएगा। And even as you allow the Spirit of God to move in your और life, जैसे आप होने देते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्यशील हो जाए, you shall see a sea change in the name of आप Jesus. अपने जीवन में भारी बदलाहट को देखेंगे, बदल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। Everything about you shall be changed in the name of Jesus आपको लेकर Christ. सारी बातें बदल जाएंगी यीशु के नाम से। I'm inspired to say this, and when I'm saying this, it shall come to pass in your life. ये प्रेरणा के जरिए मैं बात कर रहा हूँ और जो मैं ये कह रहा हूँ आपके जीवन में पूरा होगा। May the Lord and His Spirit work in us in the name of Jesus. परमेश्वर और उनकी आत्मा हमारे जीवन में कार्यशील बने रहे यीशु मसीह के नाम से। With these thoughts in mind and heart, इन विचारों को अपने मनों में और हृदय में रखते I हुए want us to go into the day. हम दिन में जाएंगे। As you do that, जैसे हम ऐसा करते हैं, the Lord who loves you shall watch over you and hover you and take care of you. परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं वो आपके ऊपर अपनी नजर को बनाए रखेंगे, आप पर मंडराएंगे, आपकी देख रेख करेंगे यीशु मसीह के Stay नाम blessed. से। आप आशीषित रहिएगा।